बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. Today we are starting with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Welcome to all the students to the academic session 2020 till 21. This is class 8, period is mathematics, and I am your maths teacher. So first of all, I would like to show you your books. This is your mathematics book. Okay, so this is in Oxford book, New Syllabus Mathematics, book 3, and there are so many authors for this book. You can read them yourself. They are written over there. Now secondly, this is your copy maintenance. This is your copy. How does your copy look? This is your maths copy, mathematics. Firstly, what you have to do, you will fill your upper cover. Then the second thing we will do, we will have to fill this front cover page with the basic information. Next is index. We have to maintain index with the date on daily basis. And the last thing that we have to start or maintain about the copy maintenance is this: you have to maintain a title page for first semester, midterm, and the session is 2020 till 2021. The next title, this is your week number 1, chapter number 1, quadratic equations and functions. So this is about your copy maintenance. That was your book. Again, this is your copy maintenance. And now we are moving to our lecture of chapter number 1, the starting of the session. So the chapter number 1 from our book, its name is quadratic equations and functions. So what do we understand about or regarding the quadratic equations and functions? First of all, before having any further detail or any further information about quadratic equations and functions or about this chapter, we must have to understand what is the quadratic equation is or what the quadratic equations are. तो सबसे पहले जो फर्स्ट हेड हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन एक सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसे आप अलजेब्रिक स्टेटमेंट या ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं. क्वालिटी स्टेटमेंट की ये होती है कि इसमें आप देखते हैं एक मार्क ऑफ इक्वालिटी. दिस इज इक्वालिटी. द साइन ऑफ इक्वालिटी जिसे आप पढ़ते हैं यूजुअली इज इक्वल टू. तो जिस इक्वेशन में या जिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आपको नजर आ जाए ये मार्क ऑफ इक्वालिटी, दैट विल बी रीड एज इक्वेशन. वो बन जाएगी आपकी इक्वेशन. मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी है प्लस अब वो बन जाएगी आपकी इक्वेशन. नाउ सेकेंडली अबाउट द क्वाड्रेटिक. व्हाट इज क्वाड्रेटिक? Quadratic is a word, is a particular term that has been derived from a Latin word, that is quadratum. Quadratum, Q-U-A-D-R-A-T-U-M. Quadratum. Quadratum is a Latin word and it means square form. Quadratum means square form. So square form means if we are having any mathematical quadratic equation or any type of quadratic equation, so it must be in square form or it will be in square form. So this was about the quadratic equation. Quadratic means square form, equation means an equal mathematical statement. Now we will move to the general form of the quadratic equation. ये अब तक की हमारी डिस्क्रिप्शन थी कि quadratic equation बेसिकली होती क्या है. अब हम ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है और मींस हाउ डू वी राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है. इक्वेशन लिखने का तरीकाकार या जो मेथड हमें बुक में गिवन है वो ये है: ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज हाउ डज क्वाड्रेटिक इक्वेशन लुक लाइक. ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है.
बुक में हमारे पास इसी तरह से हमें गिवन है। अब इस इक्वेशन का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसे सीखेंगे कि इक्वेशन में हमें किन बातों का ख्याल रखना है, या जो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं 4 डिफरेंट अल्फाबेट्स A, B, C और X। तो हम सीखेंगे इस बात को सबसे पहले कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या ये यहाँ पर किस चीज के लिए स्टैंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं A, B और C की, क्योंकि ऑर्डर वाइज भी पहले A, B, C पहले आता है और X हमारा ऑर्डर वाइज अल्फाबेट्स में आता है बाद में। तो A, B, C जब भी आप इक्वेशन में देखेंगे जनरल फॉर्म में, सो दे आर रिप्रेजेंटिंग योर रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स का मतलब क्या है? रियल नंबर्स का मतलब ये है यू मे हैव एनी ऑफ द नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर, एनी नेगेटिव नंबर, एनी फ्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो दिस इज हाउ योर ABC रिप्रेजेंट। ABC आपके रियल नंबर्स हैं, नंबर्स हैं। जब भी आप इन्हें कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको कभी भी ABC की फॉर्म नजर नहीं आएगी, वहां आपको रियल नंबर्स मिलेंगे जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज X। X हम देख रहे हैं यहाँ पर, ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारी क्वेश्चन में 2 टर्म्स में या 2 प्लेसेस पर यूज हुआ है। पहला X है हमारा यहाँ पर, दूसरा X है हमारा यहाँ पर। तो X आपके पास जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज होगा तो वो यूज होगा एज अ वेरिएबल। व्हाट डू वी मीन बाय वेरिएबल? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब अ वैल्यू दैट इज चेंजेबल, एक ऐसी वैल्यू जिसे हम चेंज कर सकते हैं, जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टाइम टू टाइम और क्वेश्चन टू क्वेश्चन और सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करती है, मुख्तलिफ हो जाती है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। और हम प्रीवियस क्लासेस में भी ये ऑब्जर्व करते रहे हैं कि जब भी हम फाइंड आउट करते हैं या सॉल्व करते हैं कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ X, तो हर क्वेश्चन में हमारी X की वैल्यू यानी हमारा फाइनल आंसर हो जाता है डिफरेंट। सो इट इज प्रूफ फॉर द वेरिएबल। तो ये प्रूफ है इस बात का कि X हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, ये वेरी करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब X वेरिएबल यहाँ हमारे पास ABC 3 रियल नंबर्स हैं जो कि 1 टाइम यूज हो रहे हैं हर टर्म में। X आपके पास यूज हो रहा है 2 टाइम। तो इसकी रीजन क्या है? इसका रीजन है हमारा ये वर्ड क्वाड्रेटिक। जैसे कि अभी हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको मिलेगी स्क्वायर फॉर्म। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर X की यूज की है ये स्क्वायर फॉर्म। X वेरिएबल पर आपको यहाँ 2 पावर नजर आ रही है, 2 पावर को हम स्क्वायर पावर या स्क्वायर एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। सो दिस इज योर X स्क्वायर। यहाँ आपके पास X पे कोई भी एक्सपोनेंट बजाहिर हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ एक्सपोनेंट है 1 का, तो यहाँ 1 एक्सपोनेंट है। फॉर द लास्ट टर्म C में हमारे पास कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है। क्या हमें यहाँ पर X नजर आ रहा है? यहाँ X नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ भी X मौजूद है। यहाँ जो हमारे पास X मौजूद है इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 0 का। तो जब भी किसी वेरिएबल पर या किसी भी नंबर पर, मींस किसी भी बेस पर अगर एक्सपोनेंट आ जाएगा 0 का, तो वो इक्विवेलेंट यानी इक्वल हो जाता है 1 के। तो ये हमेशा इक्वल होगा आपके पास 1 के। अब इसका मतलब ये है कि x0 इक्वल है 1 के। यहाँ पर x0 की जगह यानी x वेरिएबल को रिप्लेस करेगा 1 रिप्लेस होने के बाद जब हम इसे लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, तो C की वैल्यू से C के नंबर से हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास जो नंबर है वो रहेगा सेम एज इट इज, क्योंकि हम किसी भी नंबर को +1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे नंबर में कोई चेंज नहीं आता। इसलिए हम यहाँ पर x की 0 एक्सपोनेंट या 1 को मेंशन नहीं करते। तो ये था हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक स्ट्रक्चर। आई होप आपने यहाँ तक समझ लिया है। मैं रिपीट कर देती हूँ, क्वाड्रेटिक मीन्स स्क्वायर फॉर्म, इक्वेशन मीन्स एन इक्वल मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, उसके बाद मार्क ऑफ इक्वालिटी फिर आ जाता है 0। तो फर्स्ट टर्म में हमें x वेरिएबल हमेशा स्क्वायर फॉर्म में मिलेगा, सेकंड टर्म में हमें x मिलेगा विद द पावर ऑफ 1, थर्ड टर्म में हमारे पास x नहीं है, डायरेक्ट एक कांस्टेंट है, वो है हमारा c। 0 आपका सेम रहेगा और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। एट द एंड ऑफ लेक्चर मैं आपको इससे रिलेटेड एक होमवर्क भी दूंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपको याद रखनी है। 3 टर्म, सबसे पहले स्क्वायर, फिर x की 1 पावर, फिर आपके कांस्टेंट टर्म, फिर इक्वल टू लगाकर आप लिख देंगे 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म में है। मैं अब इसकी आपको एक मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख के दिखा देती हूँ, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Yes, this is 2x square minus 4x plus 6. 2 is representing your A, minus 4 is representing your B, and plus 6 is representing your C. So this is the constants, the real numbers 2,
4, 6। जैसा मैंने अभी आपको बताया था ABC आपके रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ABC प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। तो देखें A इस वक्त हमारे पास +2 है, B है हमारे पास -4, C हमारे पास आ गया अगेन एक पॉजिटिव नंबर यानी +6। फिर हम आ जाते हैं वेरिएबल बाय वेरिएबल। x², फर्स्ट टर्म सिमिलर है, सेकेंड टर्म में x सिमिलर हो गया, 0 हमारे पास यानी राइट हैंड साइड हमारी इक्वेशन का सेम है। साथ साथ हमें ये बात भी याद रखनी है, जब भी हमारे पास एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन के स्ट्रक्चर में 2 साइड्स होते हैं बेटा। एक होता है हमारे पास राइट हैंड साइड, दूसरा होता है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर है, मैं क्योंकि इस तक इस पोजीशन में खड़ी हूँ, मेरा लेफ्ट आपको यहाँ नजर आएगा। जिस पोजीशन में आप मुझे बैठ के देखेंगे आपका लेफ्ट साइड ये है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर रिवीजन के साथ यहाँ हो गया है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे मेथड्स की। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के मुतालिक, जो कि है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम चैप्टर का ओवरव्यू भी कह सकते हैं। यानी चैप्टर पढ़ने से पहले ही हम ये सीख लेंगे कि चैप्टर में हमें बेसिकली क्या क्या चीजें या कितने स्टेप्स या कितने मेथड्स पढ़ने हैं। तो बेसिकली हमारे पास 4 मेथड्स हैं अकॉर्डिंग टू द बुक, जिनके नेम मैं यहाँ आपके सामने राइट कर रही हूँ बोर्ड पर। नंबर 1 है हमारे पास फैक्टराइजेशन, सेकेंड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, थर्ड वन है हमारे पास यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, and fourth one, the last one is graphical method. जी, तो आगे पढ़ने से पहले हम मेथड्स के नेम पढ़ लेते हैं, साथ साथ इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेते हैं कि इन मेथड्स में हमें बेसिकली करना क्या है, और उसके बाद हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो जो मेथड्स जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, सबसे पहले है फैक्टराइजेशन, FACTORIZA। यहाँ पे समटाइम्स आप S भी देखेंगे, तो ये एक लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। बोथ द स्पेलिंग्स आर करेक्ट। फैक्टराइजेशन मैं जी यहाँ पे लिखती हूँ, तो मैंने यहाँ जी ही मेंशन किया है। दिस इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता क्या है। फैक्टराइजेशन इज अ मेथड in which we break down the complicated numbers or the algebraic terms। फैक्टराइजेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये सारे मेथड्स बहुत इजी हैं। ओवरऑल चैप्टर ही हमारा बहुत इजी है क्वाड्रेटिक से रिलेटेड। तो फैक्टराइजेशन भी एक बहुत ही आसान सा मेथड है, जिसमें हमें करना ये है कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर या टर्म हमारे पास मौजूद है, उसे हम छोटे छोटे नंबर्स में या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो वो मेथड कहलाएगा हमारे पास फैक्टराइजेशन। अब ये कैसे डिवीजन होगी या हम डिवाइड कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे बाद में क्वेश्चन की तरफ। अभी हम इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो अब हम बढ़ेंगे सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एज इट्स नेम इम्प्लाइज, जैसा कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन गिवन होगा एक इनकम्प्लीट फॉर्म में, और हमें उसे कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स, मैथमेटिकल टेक्निक्स अप्लाई कर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर हम कंप्लीटिंग के लिए काम करेंगे। अब जब बात आ जाती है कंप्लीशन की, तो कंप्लीशन में हमें ये बात याद रखनी चाहिए, अगर कोई चीज इनकम्प्लीट है तो उसे पूरा करने के लिए कुछ चीज हमें बढ़ानी पड़ती है, किसी चीज को ऐड करना पड़ता है, जब ही कंप्लीशन मुकम्मल हो पाती है। तो यहाँ पर हमें कुछ मैथमेटिकल टर्म्स ऐड भी करनी है क्वेश्चन के अलावा। थर्ड वन इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। थर्ड मेथड है हमारे पास सबसे इजी मेथड, द इजीएस्ट वन। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक फॉर्मूला हम मेमोराइज करेंगे, उसे 7 to 10 टाइम्स राइट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, तो वो हमें वैसे ही याद हो जाएगा। और जब हम उसे रिपीट करेंगे हर क्वेश्चन में, तो वो भी आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। मैं फॉर्मूला यहाँ आपके आसानी के लिए मेंशन कर देती हूँ। फॉर्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये सिंपल सी एक हमारे पास इक्वेशन है, एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू वेरिएबल x की, जो कि यूज होता है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर द 2 टाइम्स।
और साथ साथ इसलिए भी क्योंकि इसमें हमारे पास यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं राइट हैंड साइड पर। आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को आप कंसीडर करें, राइट हैंड साइड पे है वेरिएबल 3, ए 2 टाइम यूज हो रहा है, बी 2 टाइम यूज हो रहा है, उसके बाद है सी, ये यूज हो रहा है 1 टाइम। तो ए बी सी के जो तीनों वेरिएबल्स हैं ये आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था ए आपका क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। इन तीनों को आप यहाँ से पिकअप करेंगे और उनकी वैल्यूज को हमें सिंपली यहाँ पुट करना है, सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करेंगे, इस तरह से हमारे पास x क्या आंसर आ जाएगा, यानी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड, दिस इज योर ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है, इसके भी हमें नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीकाकार, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करना है ग्राफ पेपर का, यानी हमें ड्रॉ करने होंगे डिफरेंट ग्राफ्स और वो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पर, हमारी इक्वेशन पर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें किस तरह का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये भी मेथड बहुत इजी मेथड है, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, इसका काम थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि पहले हमें ग्राफ प्लॉट करने से पहले भी वर्किंग करनी होती है, हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम करने होते हैं, फिर हम मूव करते हैं ग्राफ पर। तो इसका वर्क आपको डबल स्टेप में मिलेगा ग्राफिकल मेथड का, तो इसका काम मुश्किल नहीं होता, अलबत्ता तवील थोड़ा होता है, यानी लॉन्ग वर्क होगा, इसका डिटेल वर्क होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे आसान मेथड है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमें कुछ ट्रिक्स अप्लाई करनी है और फैक्टराइजेशन में हमें करना है अपनी टर्म्स को ब्रेक डाउन छोटे नंबर्स यानी फैक्टर्स में। तो ये था हमारा ओवरव्यू फॉर द मेथड्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर्म्स। एक्सरसाइज में चैप्टर में आपको कुछ चीजें और देखने को मिलेंगी, वो भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ, वरना बाद में आप पढ़ेंगे तो फिर वो आपके लिए क्या हो जाएंगी, कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। आप कहेंगे टीचर ने हमें शुरू में बताया ही नहीं था। तो 2 फॉर्म्स जो हमारे पास आएंगे उनमें सबसे पहले है x + a होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू, और यहाँ कोई भी सेकेंड टर्म आपको गिवन होगी। तो एक ये फॉर्म हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, कहा हमसे क्या जाएगा कि इस फॉर्म को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें। एक ये फॉर्म हमें गिवन होगी और सेकंड फॉर्म जो हमें गिवन होगी वो है फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म लिखने से पहले फ्रैक्शन क्या होती है ये आपको पता होना जरूरी है। फ्रैक्शन मींस एनी पार्ट ऑफ द नंबर। अगर मेरे पास 1 है, एक नंबर है 1, मैं आपसे कहूं आप उसे आधा कर दें, आधा होने के बाद, हाफ होने के बाद वो बन जाएगा 1/2। तो 1/2 आपकी बन गई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम लिखते हैं इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल। और फ्रैक्शन में आपके पास होते हैं हमेशा 2 नंबर, एक ऊपर जो लिखा जाता है इस लाइन के और दूसरा वो जो इस लाइन के नीचे लिखा रहेगा। ऊपर वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो ये 2 मुख्तलिफ टर्म्स हैं हमारी फ्रैक्शन की, इन दोनों टर्म्स को हम यूज करते हैं यहाँ पर। अब आपको जो फ्रैक्शनल फॉर्म दी जाएगी इक्वेशन की वो इस तरह से गिवन हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल x/x + 4 = 3/x - 1। इस फॉर्म में भी आपको गिवन हो सकती है या कोई भी दूसरी फॉर्म, लेकिन उसमें क्वालिटी क्या होगी, यानी मेन पॉइंट क्या है कि उसमें आपको एक फ्रैक्शन गिवन होगी। तो आपको किसको फोकस करना है, फ्रैक्शन को। इससे सिंप्लीफाई करने के लिए हम फॉर्मूला एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 की मैं बात कर रही हूँ। नंबर 2 फ्रैक्शनल फॉर्म की अगर हम बात कर लें तो फ्रैक्शनल फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए मोस्टली हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई भी कर सकते हैं। सेकेंडली हम इसमें एलसीएम भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा भी कुछ ट्रिक्स हैं अकॉर्डिंग टू बुक, हम उन्हें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका ओवरव्यू हो गया, ये आपका कंप्लीट लेक्चर हो गया है मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि मिस एक एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा रही हैं। ये मैंने आपको पहली एक्सरसाइज से लेकर आखिरी एक्सरसाइज तक सारा काम बता दिया। अब हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1A का वर्क, यानी एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चंस हमें किस फॉर्म में गिवन हो सकते हैं या हम उन्हें किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल पहले बुक से सॉल्व करनी है, जो कि आपके कंटेंट में भी मेंशन है। ये है आपका कंटेंट, ठीक है। और इस कंटेंट में भी आपके पास मेंशन है प्रैक्टिस नाउ का क्वेश्चन हम बोर्ड पर सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम योर पेज नंबर 7, फ्रॉम योर बुक या पेज नंबर 7। फ्रॉम बुक पेज नंबर 7 से प्रैक्टिस नाउ का हम एक पार्ट दे लेते हैं, वो है x² + 20x।
करना हमें यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस नाउ के में हमें दिए गए हैं 3 डिफरेंट पार्ट्स। इससे पहले हमें एक ऊपर वर्क एग्जाम्पल दी गई है। वर्क एग्जाम्पल की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम प्रैक्टिस नाउ की बात करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमें खुद सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस नाउ में आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है। देखें, सवाल को आइडेंटिफाई करना एक स्टूडेंट की क्वालिटी होती है कि जब भी आप सॉल्यूशन मेंटेन करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। यहाँ पर हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ हमने पढ़े मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन जब हम प्रैक्टिस नाउ की तरफ आते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ इक्वेशन गिवन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि इसमें मार्क ऑफ इक्वालिटी मौजूद नहीं है। अगर इसे हम मार्क ऑफ इक्वालिटी लगा दें तो ये बन जाएगी एक इक्वेशन, लेकिन फिलहाल ये एक एज एन एक्सप्रेशन हमें गिवन है और हम एज एन एक्सप्रेशन ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर हमें इक्वेशन या एक्सप्रेशन की वजह से कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। हम सिर्फ सीख रहे हैं मेथड। मेथड कौन सा हम सीख रहे हैं यहाँ पर? कंप्लीटिंग स्क्वायर। हाउ डू वी अप्लाई और हाउ कैन वी अप्लाई द मेथड कंप्लीट। तो प्रैक्टिस नाउ में जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो है x² + 20x। अब सबसे पहले हम इससे जो मेथड अप्लाई करेंगे या जो स्टेप अप्लाई करेंगे वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। हमें क्या करना है? हमें करना है कोफिशिएंट कंसीडर द कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट हम लेंगे? किसका लेंगे? ऑफ x। x का कोफिशिएंट लेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है? इज 20। x का कोफिशिएंट है 20 एंड द हाफ ऑफ दिस इज, और हम इस 20 का लेंगे हाफ। अब सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखने के बाद या अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले ये पढ़ लेते हैं कि कोफिशिएंट होता है क्या है। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट एक कांस्टेंट होता है, एक पर्टिकुलर नंबर होता है, बस उसमें एक क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, एक बात उसमें बढ़ जाती है। वो ये है कि वो आपका नंबर जो कि आपके वेरिएबल के लेफ्ट साइड पर है, यानी आपके वेरिएबल से हो रहा है मल्टीप्लाई, उसे हम कहेंगे आपका कोफिशिएंट। Like a is getting multiplied with x² over here and b is also getting multiplied with x in the next term. So a and b are the constants and the coefficients. For x², a is the coefficient of x² and b is the coefficient of x. Now what? Yes, the c is a constant because it is not having any variable over there. तो c के साथ हमें कोई वेरिएबल यहाँ नजर नहीं आ रहा है। c हमारा कांस्टेंट रहेगा, c को हम कोफिशिएंट नहीं कह सकते। तो कोफिशिएंट्स हमारे पास दो हैं, वो है a x² का कोफिशिएंट, सेकंड वन इज b जो कि आपका कोफिशिएंट है x का। और अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म की बात कर लें तो यहाँ 2 कोफिशिएंट है x² का और -4 कोफिशिएंट है x का। जब भी आप कोफिशिएंट कंसीडर करेंगे, चाहे x का चाहे x² का, तो आप उसे अलॉन्ग विद द साइन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने तो कोफिशिएंट का हमारा x का x² की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ x के कोफिशिएंट की। x का कोफिशिएंट यहाँ +20 है, मैंने उसे सिंपली 20 लिखा। और अब मुझे इसका करना है हाफ। हाफ करने का मतलब किसी भी नंबर को हाफ करने का मतलब ये होता है कि आप उसे मल्टीप्लाई कर दें 1/2 की फ्रैक्शन से, क्योंकि 1/2 क्या है? 1/2 हाफ है। हाफ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो वो 1 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा 2, आप 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन किसी भी चीज को हाफ करने का मतलब ये होता है कि आप उसे 2 इक्विवेलेंट पार्ट्स में करके डिवाइड। फॉर एग्जांपल दिस इज द चॉक, अगर मुझे इसे करना है हाफ में से 20 से 2 पार्ट में तोड़ दूं, ये हो गए हाफ, ठीक है। तो हमें नंबर को 2 से डिवाइड करना होता है, लेकिन ये कंडीशन हमारी हर नंबर पर स्पेशल फ्रैक्शन पर अप्लाई नहीं हो सकती। तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम अपने नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 की फ्रैक्शन से हर क्वेश्चन में जब भी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 20 के नीचे कोई नंबर नहीं है, 1 कंसीडर करेंगे, 20 1 जा 20, 1 2 जा 2, आप इसे करेंगे कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो यहाँ आपके पास एक नंबर आ गया 10। क्या नंबर हमारे पास आ गया? 10। अब हमें क्या करना है? हमें 10 के ऊपर लगाना है स्क्वायर। यहाँ पर हम एक टर्म ऐड करेंगे अपने क्वेश्चन को कंप्लीशन की जाने बढ़ते हुए। हम यहाँ लिखेंगे सो ऐड एंड सबट्रैक्ट 10 स्क्वायर। आप ऐड और सबट्रैक्ट को करते हैं 10 स्क्वायर। ये सिर्फ समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर हमने ऐसा किया क्यों, यानी हमारे पास x² भी था तो हमने तो ये था हमारे पास x² कंसीडर हमने किया है कोफिशिएंट ऑफ x। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो क्वेश्चन हमें गिवन है इसकी बेसिकली फॉर्म डिफरेंट है। तो उसके लिए मैं आपके सामने यहाँ पे लिखूंगी 2 फॉर्मूले। इन फॉर्मूले की हमें हमेशा जरूरत पड़ेगी जब भी हम अप्लाई करेंगे
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो हम हमेशा इन दोनों फॉर्मूले के सहारे से ही काम करते हैं। वो फॉर्मूले ये हैं और ये फॉर्मूले आपके लिए बिल्कुल भी नए नहीं हैं। हम क्लास 6 में 7 में इनको बहुत डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं। तो फॉर्मूलाज आर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर, एंड द सेकेंड वन इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b whole square. So these are the two formulas that we have to consider whenever we are simplifying completing square method. तो according to this फॉर्मूला बेसिकली ये एक ही होता है, डिफरेंस सिर्फ हमारे मिड टर्म का आता है। यहाँ हमारे फॉर्मूले के दो साइड हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड पर टर्म्स आपके सिमिलर हैं। एक चेंजिंग के अलावा वो चेंजिंग है आपकी प्लस और माइनस साइन की। जब आप 2ab लिखेंगे पॉजिटिव फॉर्मूले में तो आप 2ab के साथ लगाएंगे प्लस। जब हम बात करेंगे एक नेगेटिव फॉर्मूला की तो हम सिमिलरली 2ab को माइनस साइन के साथ राइट डाउन कर लेंगे। राइट हैंड साइड की अगर हम बात कर लें तो यहाँ राइट हैंड साइड पर आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पर है नेक्स्ट फॉर्मूले में आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यही हमारी आइडेंटिफिकेशन है फॉर्मूले की। जब भी हमें फॉर्मूला इसमें यानी जब भी हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन होगा तो इस प्लस को देखते हुए हम अपने मिड टर्म के साथ प्लस लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में गिवन है तो इस माइनस को देखते हुए हम अपने फॉर्मूले में मिड टर्म के साथ लगाएंगे माइनस साइन। इसी सिमिलरली साइमल्टेनियसली अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है यानी इस लेफ्ट हैंड साइड वाली फॉर्म में गिवन है, जिस तरह से अभी हमारा प्रेजेंट एक्सप्रेशन हमें गिवन है, तो अगर हमारे पास मिड टर्म के साथ है प्लस तो ब्रैकेट बनाते वक्त हम a और b के दरमियान में भी प्लस साइन ही लगाएंगे। और अगर मिड टर्म के साथ हमारे पास है माइनस साइन यानी अगर x का कोफिशिएंट एक नेगेटिव नंबर है तो आप ब्रैकेट में भी दोनों वेरिएबल के दरमियान लगाएंगे एक माइनस साइन, सो दैट ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाए। तो इन दोनों फॉर्मूले में जो फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन के लिए कंसीडर कर रहे हैं वो है ये फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, एक्स स्क्वायर है प्लस 20x है। ये आपको सॉल्यूशन में लिखना नहीं है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिए समझा रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 20x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x में हमारे पास ये जो टर्म है बी स्क्वायर की यहाँ पर मिसिंग है। तो बेसिकली जो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं वो अपना b फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। अब फॉर्मूले को अगर हम गौर से देखें तो हमें b बेसिकली मिलेगा कहाँ से? लेफ्ट साइड पे तो तीन टर्म्स है हमारी, a स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर है, नेक्स्ट टर्म है आपके पास 2ab। इस टर्म में आपके पास तीन डिफरेंट चीजें हैं, एक कोफिशिएंट 2 है, दूसरा है वेरिएबल a, तीसरा है वेरिएबल b। तो इसका मतलब ये है कि जो बुक में इस वक्त हमें फॉर्म गिवन है, मिड टर्म गिवन है 20x, इसमें 2 भी शामिल है, हमारे फॉर्मूले का a भी शामिल है और हमारे फॉर्मूले से b भी शामिल है। फाइंड हमें क्या करना है, इसमें से हमें एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है किसे? b को बाहर निकालने के लिए अब हम पहले कंसीडर करेंगे a को, फिर हम इस 2 को यहाँ से करेंगे रिमूव। इसकी मैं बात कर रही हूँ। तो देखें a अगर हम देखें तो a हमारे पास x है, x हमें यहाँ नजर आ रहा है, x को हम यहाँ पे इससे कोई वर्किंग नहीं करेंगे क्योंकि जब आप 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे ये इस फॉर्म में होगा। जब हम इसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 a की जगह हमने राइट डाउन कर लिया x को, b हमारी अभी मिसिंग वैल्यू। तो अगर हम इस मिड टर्म को फोकस करें तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाय x बन जाएगा 2x। नंबर हमें यहाँ पर एक चाहिए जो कि हमारा b बनेगा, तो वो नंबर जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से यानी 2x से, जो कि हमें आंसर रहेगा 20x, तो वो नंबर है हमारा नंबर 10। यहाँ पर अगर हम 10 लिख दें तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर भी था और x भी था, लेकिन हमने एक्स स्क्वायर को कंसीडर ना करते हुए कंसीडर किया है कोफिशिएंट ऑफ x को। तो ऐसा हमने क्यों किया, इसके लिए इसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन है हमारे क्वेश्चन की फॉर्म। तो क्वेश्चन की फॉर्म जो है हमारी वो डिपेंड करती है इन दो फॉर्मूलाज पर जो मैंने यहाँ आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं। फॉर्मूला नंबर 1 इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, एंड सेकंड वन इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड यानी इस फॉर्म में गिवन है, और इस फॉर्म में गिवन होने के साथ साथ यहाँ से एक टर्म मिसिंग भी है। हम फॉर्मूले में देख सकते हैं हमारे पास तीन टर्म्स हैं, a स्क्वायर है, 2ab है और b स्क्वायर है। डिफरेंस क्या है हमारे पास क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर प्लस 20x हमें गिवन है, थर्ड वन टर्म हमें गिवन नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x ये हमारा क्वेश्चन है। तो वर्क जो हम कर रहे हैं बेसिकली वो इस b स्क्वायर यानी थर्ड टर्म जो यहाँ मिसिंग है इसके लिए वर्क कर रहे हैं। b स्क्वायर के लिए वर्क करने के लिए हमें b की वैल्यू फाइंड करनी होगी। फॉर्मूले को अगर हम गौर से देखें तो फॉर्मूले में हमारे पास फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर, सेकेंड टर्म है 2ab, थर्ड वन टर्म है हमारे पास b स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सेकंड टर्म की तरफ मूव करें या सेकंड टर्म पे फोकस करें तो यहाँ से हमें 2 भी मिल सकता है, a भी मिल सकता है और b भी मिल सकता है। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे। ये हमारा a स्क्वायर था यानी एक्स स्क्वायर, a तक हमारे पास x के इक्विवेलेंट है, 2 हमने फॉर्मूले से एज इट इज लिखा,
ए हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स को, तो मैं ए की जगह लिख लूंगी एक्स, और बी की जगह हम क्या लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बी अभी हमें मालूम नहीं है। तो बेसिकली यहाँ जो नंबर आना है ये वो नंबर है जिसके लिए हमने अब तक यहाँ तक ये सारी वर्किंग की है, वो नंबर था 10। देखें 10 हमें कैसे पता चला, 2 को हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे ये बन जाए 20, फिर 20 को हम a से यानी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20x। तो 2 ऐसे कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई होगा कि ये बन जाए 20, द नंबर इज 10, सो 2 10s are 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 20x। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन की मिड टर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब ये प्लेस थी 2 की, ये प्लेस है आपके पास वेरिएबल a की, और ये प्लेस आ गई b की, तो b की इस प्लेसमेंट पर आ गया 10। इसका मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन में जो टर्म मिसिंग है b स्क्वायर, उसकी वैल्यू होगी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ ऐड कर दें तो देखें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये 3 टर्म्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। मेथड नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कंप्लीट हो जाएगा। अब 10 हर क्वेश्चन में आपके पास जरूरी नहीं है कि टर्म या आपका जो कॉफिशिएंट हो x का वो इतनी ही इजी फॉर्म में हो कि आप 20 को हाफ यानी 20 से मल्टीप्लाई करवाएं a और b को, और इस तरह यानी ये स्टेप अप्लाई करके आप 10 इजीली कैलकुलेट कर लें। तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म ढूंढी है, शॉर्ट फॉर्म यानी आसान तरीका। आसान तरीका ये है कि आपके x का जो भी कॉफिशिएंट है आप उसे हाफ कर लें। हाफ करने का मतलब ये है आप उसे मल्टीप्लाई कर लें 1/2 से। हाफ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा b है वो 2 से हो रहा है मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है कि ये हो गया डबल। किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो इट मींस इट डबल्स, वो हो जाता है डबल। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है एक नंबर 3 को मैं आपसे कहूँ कि आप इसे डबल कर दें, 3 को डबल करने का मतलब 3 2 टाइम हो जाएगा, यानी 3 + 3 6। तो हम इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 6। तो किसी भी नंबर की 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन हमें डबल आंसर देती है, और किसी भी नंबर की मल्टीप्लीकेशन 2 के इनवर्स यानी 1/2 से हमें देगी हाफ। ठीक है, तो हाफ जहां पर भी टर्म यूज की रहेगी आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जहां भी डबल वर्ड आएगा वहां मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। तो हमने मिड टर्म को अपनी कर लेना है हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई करके, ताकि हमारे पास आ जाए इस b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10। अब हम इसे पुट करेंगे फॉर्मूले में अपने क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली। यस, सो द क्वेश्चन वाज x² + 20x। सवाल था आपके पास x² + 20x। टर्म जो हमें ऐड करनी है वो b² है। b² के लिए हम 10 के ऊपर अप्लाई करेंगे स्क्वायर प्लस 10² हमने यहाँ ऐड कर दिया। लेकिन स्टेटमेंट हाफ लेने के बाद यानी 10 फाइंड आउट करने के बाद मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है वो है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हम क्यों करें, हमें सिर्फ ऐड करने से ही हमारी टर्म कंप्लीट हो जाएगी, हमारी एक्सप्रेशन हमें आंसर दे देगी। तो हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्यों करें, बिकॉज इट्स अ मैथमेटिकल रूल। मैथमेटिक्स का ये रूल है, ये उसूल है। जब भी हम अपनी आसानी के लिए, अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई भी टर्म ऐड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमें साइमल्टेनियसली उसी स्टेप में उसे माइनस भी करवाना होगा, ताकि माइनस करवाने से जो उस टर्म की एडिटिंग का यानी एडिंग का इम्पैक्ट है, असर है, वो हमारे सवाल पर से सब्ट्रैक्ट होने के साथ खत्म हो जाए और हमारा क्वेश्चन वापस अपनी एक्चुअल फॉर्म में यानी बुक फॉर्म में जैसा कि हमें किताब में गिवन है वैसा हो जाए। तो इसके लिए हम +10² ऐड भी करेंगे और -10² भी यहाँ साथ में लिख लेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करना है हमें 10² को। ये स्टेप है आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप ये टर्म ना भूलें कि आपने एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी करवानी है। अब इसके बाद हमारा वर्क बहुत इजी हो गया, क्योंकि हमने बोर्ड पर फॉर्मूले लिखे थे तो उस समय समझ में आ गया कि हम इसे फॉर्मूले से क्या करेंगे, इनक्लोज करेंगे। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सिंस दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि a² प्लस मिड टर्म के साथ साइन है प्लस का, तो हम फॉर्मूला भी कौन सा लिखेंगे, प्लस का। अगर मेरी मिड टर्म के साथ साइन होता माइनस तो मैं फॉर्मूला भी कौन सा लिखती, माइनस का। a² + 2ab + b² = a + b होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे। क्वेश्चन हमारा भी इस फॉर्म में है, अब हम उसे कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक राउंड ब्रैकेट, जो कि हमने यहाँ मेंशन किया। फिर हमें चाहिए था वैल्यू ऑफ वेरिएबल a की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास है x, b चाहिए हमें, b हमारे पास है 10, दोनों के बीच में हमने लगाया साइन प्लस का, ब्रैकेट को क्लियर क्लोज और बाहर हमने मेंशन कर दिया होल स्क्वायर। तो ये 3 टर्म्स फॉर्मूला एप्लीकेशन के बाद सम अप होकर बन गई 2 टर्म्स विद इन ब्रैकेट एंड विद द होल स्क्वायर आउटसाइड द ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारी ये रिमेनिंग टर्म है इसे एज इट इज लिख लेंगे इस स्टेप में, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसे भी क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि हम इसे सॉल्व कर लेंगे।
अब 10 के ऊपर 2 की पावर है। यहाँ एक बड़ी मिसकॉन्सेप्शन मौजूद है स्टूडेंट्स में, वो ये समझते हैं किसी भी नंबर पे अगर किसी दूसरे नंबर की एक्सपोनेंट आ जाए तो आप उस नंबर को ऊपर लिखे जाने वाले यानी अपराइट पोजीशन पे मौजूद नंबर से मल्टीप्लाई करवा लें। मिसकॉन्सेप्शन क्या है? मिसकॉन्सेप्शन ये है कि अगर मेरे पास है 10 और 10 के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसे क्या बना दें 20। ये रॉन्ग है। 10 के ऊपर या किसी भी पर्टिकुलर नंबर के ऊपर जिस नंबर का एक्सपोनेंट होगा इसका मतलब ये है कि आप इसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इसी सेम नंबर से, लेकिन नंबर ऑफ रिपीटिशन आपको क्या रखना है जो आपकी एक्सपोनेंट यानी आपकी पावर कह रही है। यानी मुझे 10 को मल्टीप्लाई करना तो 10 से ही है, अब 2 टाइम करना है, 3 टाइम करना है, 4 टाइम करना है, ये मैं देखूंगी अपनी एक्सपोनेंट यानी पावर के मुताबिक। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट हमारे पास है यहाँ पावर 2, तो मैंने 10 को लिख लिया 2 टाइम, सो 10 टाइम्स 100। ये हो गया सिंप्लीफाई, यहाँ हम लिखेंगे 100। तो ये हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट। कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ पर हो गई कंप्लीट। देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपको मिल गया पूरा मुकम्मल स्क्वायर जो कि a प्लस b का होल स्क्वायर है और ये हमारे पास एडिशनल टर्म है। ये था एक्सप्रेशन का काम। जब हम इसे अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 1A में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो हम यही वर्क थोड़े डिफरेंट स्टाइल में करेंगे, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारी थोड़ी सी डिफर हो जाएगी, लेकिन वो भी ऐसा ही इजी है जैसा कि मेथड आपके सामने बोर्ड पर इजी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में आई होप कि आपको सारी बातें और तमाम तर चीजें समझ आ गई हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ आपका होम टास्क। तो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट आपका होम टास्क जो है वो प्रैक्टिस नाउ का ये पार्ट है, पार्ट सी और पार्ट डी। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप लेंगे एक रफ कॉपी में आप करेंगे सॉल्व। इस क्वेश्चन को भी तो मैंने बोर्ड पर सॉल्व किया है, रिमेनिंग जो आपके 2 होमवर्क पार्ट है उन्हें भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप करेंगे ये कि इन्हें अपने आंसर्स को टैली करेंगे, अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप इन्हें अपनी फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। तो इसके बाद आपको करना यह है कि आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल वर्क है जो मैं अभी बोर्ड पर मेंशन करने लगी हूँ, आप वो भी सिंप्लीफाई करेंगे। पहले आप ये कंटेंट को होम टास्क पूरा करेंगे, फिर मैं आपको एक यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क दे रही हूँ छोटा सा आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने % समझ में आया। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डिफरेंट इक्वेशंस मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ। आपको क्या करना है पढ़ लीजिएगा स्टेटमेंट, यहाँ मैं लिख रही हूँ। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आइडेंटिफाई कीजिए एंड और राइट देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पहले आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उन्हें मेंटेन करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ मैं आपको 4 इक्वेशंस लिख के दे रही हूँ। Yes. So these are the 4 different equation. Equation number 1, x cube minus 2x plus 4 is equal to 0, x square minus 2x square plus 9 is equal to 0, minus 3x plus 5 minus 12x square is equal to 0, 11 plus 6x minus 15x square is equal to 0. तो ये है आपके पास 4 different equations। ये आपके पास 4 डिफरेंट इक्वेशंस हैं। इनमें आप आइडेंटिफाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, साथ साथ आप इनको राइट डाउन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये आपका है होम टास्क यानी आपका होमवर्क। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको इस लेक्चर से रिलेटेड तमाम बातें समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1A जो कि हमारे कंटेंट की फर्स्ट एक्सरसाइज है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।